Welcome to Celia, the first choice of students who want to excel in the field of internet marketing. Celia consists of highly qualified trainers who are adept in the field of internet marketing. We are the pioneer institute that started comprehensive training for the benefit of students. Since our launch, hundreds of students have been trained and secured good jobs in the expanding IT industry. We have taught about 60 plus courses to 5,000 plus students with the help of 70 plus trainers. I am Sidra Wasim, a digital marketer by profession with over 10 years of freelance work experience in the fields of content marketing, content writing, search engine optimization, and social media marketing. I have worked in multiple industries, including but not limited to management consultancies, training programs, real estate, coaching businesses, e-commerce, and software as a service. Additionally, as a content marketing trainer, for the last 5 years, I have trained 15 plus batches of trainings to help them be financially independent through digital skill development. In this course of freelancing, you will learn how to start freelance, the secrets to finding the highest paying freelance job, remaining focused on your goals, creating a portfolio, and setting up an agreement with your client. You will also learn how to set up your schedule, work your hours according to your own availability, and make more money with the same client that you have been working with. A business where you can charge $20 to $100 plus an hour while working from anywhere you want in the world is also a part of this course. This is a beginner level course and you don't have to shy away from registering if you think that you don't know anything about freelancing. You are exactly the one we are actually looking for because we want to teach people from the scratch on the beginner level about everything regarding freelancing. Now let's talk about the course outline that will be taught to you during this freelancing course. We'll actually be teaching you how to start your freelancing career so that you can make money by sitting at your home. In order to do that, we'll teach you how to create a profile on any freelance marketplace where you can pitch to your client and tell them about your services and skills that you want to serve to your client. We'll also be sharing important tips and tricks that will help you navigate through your freelancing journey and to get a client who's loyal with you throughout their services. We'll also be discussing how to get your clients from social media platforms and how do you engage with them throughout your work. Course outline will also be informing you about the payment methods that work in Pakistan and that can help you to withdraw your money through local bank accounts and other payment methods available in Pakistan when you're working as a freelancer. One of our course objectives is to help you be a freelancer, a successful freelancer after you have learned various tips and techniques in this course. Another one of the objectives of this course is to help you create a portfolio and set up your profile so that you can learn, practice, and start your journey as a freelancer. In addition to the payment methods working in Pakistan, we'll also teach you the communication skills that are pertinent to the field of freelancing. The communication skills that you practice elsewhere in your physical jobs is certainly different from the communication skills that are required in case of a freelancing journey. Now let's talk about the timeline and teaching method of this course. Well, this would be about a 1 month long course with 2 classes a week. Each class duration would be about 1.5 hours, which would include about 10 minutes of lecture, followed by 50 minutes of live demonstration, where I would be teaching and telling you how to make a profile, how to pitch to a client, how to submit a proposal, what do you exactly write in a proposal, demonstrations of all these things, followed up by 30 minutes question and answer session at the end, where trainees can ask their questions, resolve their queries, and get on with their freelancing journey. Trainees will also be assigned with tasks and assignments related to freelancing profile setups. All these tasks and assignments will be checked thoroughly by the trainer at the end of the next class so that a feedback is given to the students and they can then improve their profiles accordingly. In order to help the trainees successfully navigate through this course, we have certain expectations from the trainees also, so that you can actually learn something out of this course. This is not a teaching program, which is certainly different from training. A training program is where the student is given a task so that he practices whatever is taught to him in the class, and that when he comes back with his assignments and tasks, he has actually learned something out of it. So in this training program also, we have certain expectations from trainees, which includes number 1, taking notes during the training program. Whichever the trainer is teaching to you, whatever the trainer is telling to you, you're supposed to take notes in the class. Practice what is taught in the class is another thing that is expected from the trainee. If you have not practiced it in your home, if you have not practiced it after
after the class, you might not actually be learning anything from this course. Number 3, you're expected to complete your assignments in time so that the trainer can give you feedback in the very next class. You're also expected and encouraged to ask questions in order to resolve any queries that you might have in your mind. And remember, no question is a stupid question and no question is an irrelevant question. Ask whatever you feel like and be confident in asking your questions, because that will only make you a good learner. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि हमने बेसिकली अपवर्क पे जाके काम क्या करना है और कैसे प्रोफाइल बनानी है। ये बेसिकली एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है अपना काम, अपनी सर्विसेज, आपकी जो भी स्किल्स हो, जो भी हुनर आपको आता हो, आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये बेसिकली upwork.com एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपने बेसिकली अपने बारे में जो भी आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं इसके अंदर प्रोफाइल के, जिसके अंदर सबसे पहले आपको नजर आएगा एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपना नाम मेंशन करना है, जहाँ पे आपका पहला नाम यानी कि जिस नाम से आपको घर पे या CNIC पे जो आपका नाम लिखा हुआ है जिससे आपको पुकारा जाता है वो, और जो आपका लास्ट नेम है उसका पहला अल्फाबेट या पहला इनिशियल या पहला हर्फ वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा जब आप upwork.com पे साइन अप कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो जब आप उसको अपना एड्रेस बताते हैं तो वहाँ से ही वो आपकी लोकेशन पिक कर लेता है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा लोकल टाइम है वो दिखाना शुरू कर देता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है तस्वीर लगाने का, जिसके अंदर आपको अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल तस्वीर लगाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपका चेहरा क्लियरली नज़र आ रहा हो, बैकग्राउंड में कोई ऐसी सीनरी ना हो या बैकग्राउंड क्लियर हो, इस तरह की कोई तस्वीर आपने यहाँ पे लगानी है। वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि जब कोई क्लाइंट आके आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको मालूम पड़ सके कि ये जो फ्रीलांसर है ये एक्चुअली में कोई इंसान है या कोई रोबोट है या कौन शख्स है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे एक ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो डेवलप हो जाता है। इसलिए जो है वो प्रोफाइल में पिक्चर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम मज़ीद नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो आपके पास ये एक सेक्शन नज़र आ रहा है आपको। इस एरिया को हम कहते हैं ये आपकी एक अदर हेडलाइन है प्रोफाइल की, जहाँ पे बेसिकली आप अपने डिफरेंट स्किल सेट को मेंशन कर सकते हैं या उससे रिलेटेड स्किल से रिलेटेड जो डेजिग्नेशन बनता है उसको मेंशन कर सकते हैं। ये आपके लिए कीवर्ड्स का भी काम करता है। कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि जब कोई क्लाइंट आके अपवर्क पे सर्च करता है कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा फ्रीलांसर चाहिए जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करके दे दे, तो अगर मैंने अपने पास अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो एज अ फ्रीलांसर अपवर्क जो है वो मेरी प्रोफाइल यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा डिफरेंट क्लाइंट्स को। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि आप क्या करें कि जब कोई छोटी सी पेंसिल का निशान नजर आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये चीज़ एडिटेबल हो जाएगी। यहाँ आके आप इसको एडिट कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी स्किल्स को या जो काम आपने यहाँ पे करके देना है उसको यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अपनी डिफरेंट स्किल्स को जो कि इंटर रिलेटेड हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, साथ एक सेपरेटर लगाया हुआ है, फिर स्पेस दी हुई है, फिर अगला जो मैं काम करके दे सकती हूँ जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का है वो मेंशन किया हुआ है, फिर सेपरेटर लगाया हुआ है और एक और स्किल सेट को आगे मेंशन किया हुआ है कि मैं एक कंटेंट राइटर भी हूँ। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने बेसिकली अपने आप को 3 डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक करने की कोशिश की है कि अगर कोई क्लाइंट आके किसी कंटेंट राइटर की सर्विसेज हासिल करना चाह रहा है तो उसको मेरी प्रोफाइल मिल जाए, अगर कोई क्लाइंट सोशल मीडिया मार्केटर ढूंढ रहा है तो मेरी प्रोफाइल मिल जाए, अगर कोई क्लाइंट कंटेंट मार्केटिंग का काम करवाना चाह रहा है तो उसको मेरी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर मिल सके। और इसके थ्रू मैंने क्या किया, ये भी बता दिया कि भाई मेरे पास ये 3 डिफरेंट स्किल्स हैं, आपने इनसे रिलेटेड कोई काम कराना है तो मैं आपको उसके बारे में हेल्प कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर आप देखें इसी के राइट हैंड साइड पे आपके पास एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपना आवरली रेट डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई 1 घंटे के हिसाब से आपको कोई काम देना चाहे क्लाइंट तो आप उसे 1 घंटे के कितने पैसे चार्ज करेंगे। जब आप एज अ बिगनर, एज अ न्यूबी, जब आप नया काम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रीलांसिंग की दुनिया में तो यूजुअली आप $5 पर आवर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप इवेंचुअली आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे आपका काम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं क्लाइंट से, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, वो जॉब्स आपकी यहाँ पे लिस्ट डाउन होना शुरू हो जाती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना रेट $10, $15 और इस तरह करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये पेंसिल का निशान है, इसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है और ये आपको ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे अपना आवरली रेट जो है वो डिफाइन कर सकें। यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि जो भी आवरली रेट आप चार्ज कर रहे होंगे उसका 10% जो है वो एज अ फ्रीलांसर सर्विस फ़ी अपवर्क को चली जाती है, यानी कि आपके हर ऑर्डर का 10% जो है वो फ़ीस की फॉर्म में अपवर्क चार्ज कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे $25 मेंशन किया हुआ है तो उसमें से $2.5 जो है वो अपवर्क ले लेगा,
उसकी वो फ़ी चार्ज कर रहा होता है और बाकी जो है वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। फ़ीस वो क्यों चार्ज कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो आपको एक ऐसा अच्छा ट्रस्टवर्दी एतबार के काबिल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे जाके आपको क्लाइंट को आसानी मिल जाएंगी, आप उनके लिए काम करके दे सकते हैं। वो इस चीज़ को अपवर्क वाले इंश्योर करते हैं कि आपके जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, वो आपको वाकई में वसूल हो सकें। उसका उन्होंने जो पूरा सेटअप बनाया हुआ है, इसकी कोई ऐसे जिसके अलावा पैसे चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे बेसिक फ्रीलांसर साइन अप करते हैं तो इस वजह से फिर वो क्या करते हैं कि आपके हर ऑर्डर में से जो है वो 10% फीस माइनस कर लेते हैं और अपने प्रॉफिट ऐसे अर्न कर लेते हैं और हमें जो है वो एक ऐसा ट्रस्टवर्दी काबिल एतबार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू जो है हम जाके अपनी फ्रीलांसिंग घर बैठ के जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने उस चीज़ को सेव कर लिया। उसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन आ जाता है जिसको आप अबाउट का सेक्शन कह सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन का सेक्शन कह सकते हैं आपकी प्रोफाइल का। ये वो जगह है जहाँ पे आप थोड़ी तफसील के अंदर अपनी प्रोफाइल, अपनी प्रोफेशनल जो आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपने पढ़ाई की हुई है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपको स्किल्स आती हैं काम करने की, उसको आप बेसिकली यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है ये पेंसिल का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको डिटेल के अंदर बताने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि जी मैंने XYZ पढ़ाई की हुई है या डिग्री हासिल की हुई है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई सर्टिफिकेशन की हुई है। आप उस चीज़ को बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने उस डिग्री से रिलेटेड पढ़ा है या उस डिप्लोमा में या सर्टिफिकेशन में जो भी सीखा है, उस स्किल सेट को आप नीचे बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बता सकते हैं और यही वो चीज़ होगी जो आप सर्विसेज भी ऑफर कर रहे होंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आपने किसी बड़े क्लाइंट के लिए या किसी इवन छोटे क्लाइंट के लिए भी, जो भी क्लाइंट के लिए आपने कोई काम वगैरह किया हुआ हो, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जी मैंने जो है वो XYZ क्लाइंट के लिए इतने अमाउंट का या इस तरह का काम किया था और मैं आपको भी ये सेम सर्विस दे सकता हूँ करके। इसलिए एंड पे आप उसको एक कॉल टू एक्शन दे देते हैं जिसको हम CTA भी कहते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि जब क्लाइंट ने जान लिया कि आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या स्किल्स आपके पास हैं, आप क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, फराहम कर रहे हैं, तो आप एंड पे क्लाइंट को बोल देते हैं कि भाई अब आप भी अगर यही सेम सिमिलर सर्विसेज मेरे से हासिल करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें और मैं आपको अच्छी सी सर्विसेज प्रोवाइड कर दूँगी या कर दूँगा और वो टाइम पे आपको काम डिलीवर करके हम दे देंगे। और रेट के ऊपर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अफोर्डेबल मेरी प्राइसेस हैं बाकी फ्रीलांसर्स के कंपैरिजन में। ये जो चीज़ आप यहाँ पे एक लाइन में एक्सप्लेन करके लिख रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन CTA, यानी कि आप बेसिकली क्लाइंट को बता रहे हैं कि भाई आपको मालूम पड़ गया मेरे में क्या ऐसी खासियत है कि आप मुझे हायर करें, अब आपका काम ये है कि अब आपने मुझे जो है इस काम के लिए अपने पास रख लेना है। ये जो अबाउट का सेक्शन है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी विद टाइम चेंज होता रहता है और आप इसको चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे आपका अपवर्क के ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस, आप कह लें आपकी क्वालिफिकेशन चेंज होती जाती है, आपके क्लाइंट्स डिफरेंट होते जाते हैं। जैसे जब मैंने एज अ बिगनर 2013 के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो यहाँ पे सर्टेनली मेरे पास उस वक्त कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस वक्त चूँकि मेरी क्वालिफिकेशन MBA थी, मैं यहाँ पे ये मेंशन मैंने किया हुआ था कि जी मैंने MBA किया हुआ है, उसके अंदर मैंने ये कोर्सेज पढ़े हुए हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको राइटिंग की सर्विसेज दे सकती हूँ। और उसके बाद इवेंचुअली जब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो मैंने इसको यहाँ पे चेंज करके अब अपने कंटेंट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उस कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड जो मुझे स्किल्स आती हैं उनको लिस्ट डाउन किया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है उसको लिस्ट डाउन किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। सो आपको मे बी ये चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही होगी, जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो मेरी अपनी प्रोफाइल में तो है नहीं। वो इसलिए है कि मेरी प्रोफाइल अब बिगिनर लेवल नहीं रही, ज़ाहिर है मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो गया हुआ है, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। बट जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं शुरू में तो आप इसको इसी तरीके से ही इसी पैटर्न को आप फॉलो करें जहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करें, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, स्किल्स के बारे में बात करें, पोर्टफोलियो के बारे में बात करें और फिर आप उसको एक कॉल टू एक्शन दें कि भाई आप मुझसे आकर ये सर्विसेज जो वो सारी ख़रीद सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा एरिया हो सकता है, एक अच्छी प्लेस होती है जहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में अपने बारे में अपने क्लाइंट को जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से ये आपका हो गया जी अबाउट का या डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आप कह सकते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर आए तो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं। स्पेशलाइज प्रोफाइल्स क्या है कि अगर आप अपनी कोई एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रोफाइल अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बनाई हुई है, एक प्रोफाइल अपनी कंटेंट राइटिंग के बारे में बनाई हुई है और एक जनरल ओवरऑल जो आपका एक अम्ब्रेला होता है स्किल का, आप उसके बारे में बना सकते हैं। तो ये भी अपवर्क का एक बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे आप जो है अपनी एक स्पेसिफिक स्किल के बारे में
उससे रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स मेंशन करना चाह रहे हैं वो आपको अलाउ कर देता है यहाँ पे उस सबको मेंशन करने के लिए। इस सब को जानने के लिए कि हमें अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स कैसे बना सकते हैं और जनरल प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, मजीद उसके क्या सेक्शंस हैं, हम बात करेंगे इंशाल्लाह क्लास में।